Students, in our previous classes, we have discussed about different type of reactions. But in this video, we will discuss oxidation reaction, reduction reaction, redox reaction, corrosion and rancidity. Let's start. What is oxidation reaction? Oxidation reaction is that reaction in which gain of oxygen or loss of hydrogen takes place. ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का गेनिंग होगा और या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर appears. When copper reacts with oxygen, Cu plus O2 with heat, it gives 2CuO. Here Cu is oxidized and becomes CuO. Here Cu is oxidized. Another example of oxidation is when ethanol can be oxidized to ethanol. Ethanol can be oxidized to ethanol. CH3 CH2OH in presence of K2Cr2O7 potassium dichromate, it changes to CH3CHO. Here one hydrogen losses. Here oxidation by loss of hydrogen. इस वाले रिएक्शन पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा था और इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा. तो दोनों ही केस में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. एज ए डेफिनेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन in this reaction. Both reactions are oxidation reaction, and this compound potassium dichromate reduces ethanol, and therefore it is called an oxidizing agent. Potassium dichromate is the oxidizing agent. Now reduction reaction. Reduction reaction is that reaction in which loss of hydrogen or gain of hydrogen takes place. जैसा कि ऑक्सीडेशन में क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, बट रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बट यहां होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन. या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस, इट अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन as reverse reaction takes place. Here copper oxide reduced to copper because it loses oxygen atom. Clear? Yes. Another example, here oxygen is lost. Copper oxide loses oxygen. Here ethanol can also be reduced back to ethanol by adding hydrogen to it. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखे थे कि इथेनॉल में ऑक्सीडाइज्ड हुआ था, बट उसका उल्टा जब हम इथेनॉल को सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये फिर से इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ वन हाइड्रोजन ऐड होगा एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. हियर sodium tetrahydroborate is the reducing agent. Now what are oxidizing agents and reducing agents? Oxidizing agents give oxygen to another substance or remove hydrogen from it. Oxidizing agent क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है उससे. अब फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम डाइक्रोमेट. एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और गिव हाइड्रोजन टू इट.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट उल्टा ये क्या करता है, उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेता है या फिर उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम tetrahydroborate. Sodium tetrahydroborate is the reducing agent. Now redox reaction. The reaction in which both oxidation and reduction takes place is known as redox reaction. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता है, that is redox reaction. For example, Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2. Here Fe2O3 reduces to Fe, it loses oxygen, and CO oxidizes to CO2. Here there are 3 oxygen atoms, and in the right side there are 6 oxygen atoms. It means 3 more oxygen atoms are added to this. It means oxidation takes place. Here reduction as well as oxidation took place. Therefore this reaction is a redox reaction. Another example of redox reaction is when zinc oxide reacts with carbon, it gives zinc and carbon monoxide. Here zinc is reduced to and carbon is oxidized. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन साथ ही साथ रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है. क्लियर? Now the topic is corrosion. When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. जब कोई मेटेलिक सब्सटेंस आसपास के मॉइस्चर या एसिड से रिएक्ट करता है तो उसको कोरोजन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन. रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन ऑफ Fe2O3 is formed. This is rusting of iron. These are the examples of corrosion. अगर देखेंगे कि corrosion का इफेक्ट क्या होता है तो देखेंगे कि corrosion damages to car bodies, जो कार बॉडीज होता है उसको डैमेज करता है, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल्स. मेटल्स की बनी हुई वस्तुओं पर corrosion का काफी प्रभाव पड़ता है. Here, rusting of iron can be prevented by painting, oiling the substance or oiling the surface or by galvanization. किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए या फिर आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो सरफेस पे पेंट लगा दो या फिर ऑयल लगा दो, ऑयल और ग्रीसिंग, या फिर गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से रस्टिंग को रोका जा सकता है. क्लियर? नाउ द टॉपिक इज रैंसिडिटी. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. फैट्स और ऑयल जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उसकी जो स्मेल और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं. यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो सब्सटेंस जो होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकता है, दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. जिस फूड में फैट और ऑयल की मात्रा होती है उसमें उसको ठीक रखने के लिए या फिर उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर दिया जाता है. तो क्या होता है, वो खराब होने से बचते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज एडेड टू पैकेट ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का फिलिंग किया जाता है. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर and in our next video we will discuss some important questions and their answers. Clear?